Good morning, officers. I hope you all are good. Here we are again with our weekly current affair MCQs, and this is July 19. So let's begin without any late. But first of all, we will discuss books of this week. First book is Humankind, A Hopeful History, and this is written by Rutger Bregman. Next book is The Decline and the Rise of Democracy, A Global History from Antiquity to Today. It's written by David Savage. How Lulu Lost Her Mind is a fictional book and it is written by Rachel Gibson. The Peasant's Dream. This is a good book and this is also a fiction book. You can read this book. This is about a poor farmer's son and his love life, his experience. So you can read this book. It is written by Malane Dickerson. If It Bleeds is written by Stephen King, and Stephen King is a very renowned writer, and you can also read his best-selling book The Outsider. If you want to read his book, The Outsider is a very famous book. It's by Stephen King. The Prisoner's Wife is written by Maggie Brooke, and this is book a novel which is inspired by a true story. So you can read this book too. So important books I will discuss you later that which are the important books out of these all. Exploring Social Abilities of Contemporary India, New Perspectives. It's by Sujata Patel, and this books covers all the sociologists reflect on three classic fields that define sociology since independence, that is family, marriage, kinship, caste and tribal inequalities, beliefs, religion. These all are topic are covered in this book. So this is a good read for UPSC aspirants. A Word Without Work, and this is a very interesting book. I'm going to read this book and I want you all to read this book because this book is really so fascinating, because the writer Daniel Susskind is has described artificial intelligence in this book and the advancement of artificial intelligence. He describes the all kind of jobs that are increasingly at risk after artificial intelligence. So this is a very good book, a very different perspective. You must read this book. Traditional Knowledge in Modern India by Nirmal Sen Gupta. Getting There by Manjulan Padmanabham. So these are the all books and this is important book. Remember this book. This book is also important and this book is also important. So these three books are important. Rest book you can skip. So let's begin our MCQ session. We will show you MCQ with 4 options and you will given 3 seconds to choose the correct answer and then we will discuss like we always do. So let's begin without any late. First question is, who was the first writer to translate the great epic of ancient India, that is Ramayana, from Sanskrit to Nepali? From Sanskrit to Nepali. So this is a very important question, and if you guys are good in current affair, that it means you if you only read newspaper daily, then you can easily answer this question. So you have 3 seconds to answer, and the correct answer is Bhanubhakta Acharya. Bhanubhakta Acharya, he was a writer, and recently on 13th July, Sikkim celebrated Bhanubhakta Jayanti. Sikkim, and Bhanubhakta Jayanti is celebrated in Sikkim, is also famous in Nepal. So ये डे होता है 13th July. This is his 206th birthday this year. So remember this name, Bhanubhakta Acharya. Second question is, the launch pad which will be used by UAE's space mission is on which island? And your options are Yes Island,
Tanegashima Island, El Lulu Island, and Dalma Island. And you have 3 seconds to answer this question. And the correct answer is Tanegashima Island. So ये जो island की बात हो रही है, this island is in Japan. And let me tell you one important fact that UAE का जो space mission है, this is the very first mission of any Arab country. तो ये उनके लिए काफ़ी एक important mission है. So जिस island पे ये लॉन्च होगा, जिस आइलैंड से ये लॉन्च होगा, उस आइलैंड का नाम है तेनगेजिमा आइलैंड एंड ये आइलैंड है इन जापान. ओके, आपको नेम भी पता होना चाहिए. वी विल आस्क दिस क्वेश्चन कि स्पेसक्राफ्ट का नेम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है. अरब्स वर्ल्ड फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन रॉकेट लिफ्टिंग ए स्पेसक्राफ्ट इज कॉल्ड मिशन रॉकेट lifting a spacecraft is called, and your answers is Life, Spark, Hope and Rise. And you have 3 seconds to answer. And the correct answer is Hope. Yes, Hope name है उस मिशन रॉकेट का जो स्पेसक्राफ्ट को लिफ्ट करेगा. तो इस चीज़ में थोड़ा डिस्कस करते हैं. जो स्पेस यूएई का जो स्पेस सेंटर है यूएई का, वो कोलैबोरेटेड है किसके साथ? ये दोनों काम कर रहे हैं मिलके. एक तो यूएई का स्पेस सेंटर और दूसरा मोहम्मद बिन रशीद स्पेस सेंटर. ये दो स्पेस सेंटर हैं, ये दोनों साथ में मिलके काम कर रहे हैं एंड यूएई की स्पेस एजेंसीज इनके साथ हैं. और इन तीनों का कोलैबोरेशन है मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज के साथ. तो ये सारी कंपनीज मिलके काम कर रही हैं पहले अरब कंट्री के स्पेस मिशन के लिए, जो कि 17 जुलाई को दोबारा से अब लॉन्च किया जाना था. अभी उसकी कुछ ऐसे न्यूज़ आई नहीं है बिकॉज वेदर ख़राब होने की वजह से वो पहले भी डिले हुआ है. तो हमें ये चीज़ याद रखनी है दैट द नेम ऑफ दैट मिशन रॉकेट लिफ्टिंग ए स्पेस क्राफ्ट इज़ होप. एंड ये जो क्वेश्चन है, ये आइलैंड कौन सा है, कहाँ पे से वो लॉन्च हो रहा है, देन द आइलैंड नेम इज तनगेजिमा एंड आइलैंड इज इन जापान. लेट्स सी आवर फोर्थ क्वेश्चन. द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय अटल इनोवेटिव मिशन which will identify promising startup that have potential of COVID-19 innovation is. मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को. अभी रिसेंटली अटल इनोवेशन मिशन के अंदर एक इनोवेटिव इनिशिएट किया गया है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसमें कोविड-19 इनोवेशंस, चाहे वो कोई मास्क हो या कोई भी एक ऐसी डिवाइस हो, कुछ भी मशीन हो जो भी कोविड-19 पैंडेमिक में हेल्प कर सके ह्यूमन काइंड को, उन इनोवेशन को आगे लाने के लिए, स्टार्टअप्स को आगे लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है. तो उस प्लेटफॉर्म का नेम क्या है? यू हैव 3 seconds टू आंसर द क्वेश्चन. 1, 2 and 3. And the correct answer is Demo Days. Demo Days उस इनिशिएटिव का नेम है. डेमो डेज क्या चीज़ है? डेमो डेज का जो पार्टनरशिप है वो है गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ, जैसे बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़, बायोटेक इंडस्ट्रीज़, रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्टार्टअप इंडिया, इन सब के साथ डेमो डेज का कोलैबोरेशन है. एंड डेमो डेज में क्या किया जाएगा? 9 डेमो डेज दिए जाएंगे पीपीई किट से रिलेटेड, मैकेनिकल डिवाइस से रिलेटेड, मेडिकल डिवाइस से रिलेटेड. तो जो भी डिवाइसेस यूज़ हो रही है उन सब से रिलेटेड, और कोई स्टार्टअप चीज़ है, कोई प्लान है किसी का, तो वो गवर्नमेंट के सामने इस चीज़ को रख सकेगा ताकि गवर्नमेंट उस चीज़ पे आगे काम कर सके. नेक्स्ट क्वेश्चन. एयर बबल विच वॉज रिसेंटली इज न्यूज़ रिफर्स टू. एयर बबल काफ़ी अभी टर्म यूज़ हो रहा है 2-3 दिन से, तो बताइए ये टर्म किसको रेफर करता है? एंड यू हैव 4 ऑप्शंस. योर 3 seconds starts now. 1, 2 and 3. And the correct answer is transport and people connectivity between specific regions in the world. Yes, एयर बबल अभी वंदे भारत मिशन था, उसको ही एक एडवांसमेंट में एयर बबल हम कह सकते हैं, बिकॉज इसमें भी अदर कंट्रीज से ट्रांसपोर्ट
किया जाएगा, लोगों को कनेक्टिविटी बनाई जाएगी अदर रीजन से, यहाँ से भी भेजे जाएंगे, इंडिया से भी भेजे जाएंगे। तो प्रेफर ये किया जाएगा कि जिस कंट्री में कोविड-19 की सिचुएशन सिमिलर है, केसेस सिमिलर है, नंबर ऑफ केसेस, सिचुएशन कंट्रोल में है, तो उनके साथ, जैसे यूएई के साथ, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, उन सब के साथ ये किया जाए, ट्रांसपोर्ट किया जाए, यहाँ से पर्सन वहाँ भेजे जाए और वहाँ से पर्सन यहाँ भेजे जाए। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। एयर बबल कोई एयर या कोई साइंस से रिलेटेड नहीं है, ये वंदे भारत मिशन, अगर आप याद कर सकें, वंदे भारत मिशन से एक एडवांस चीज़ है, क्योंकि वंदे भारत मिशन अब ओवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो ये एयर बबल नया इनिशिएटिव लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इंडिया साइन एग्रीमेंट ऑन साइबर सिक्योरिटी विद विच कंट्री। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूज़ में अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, अगर हमारे डिस्कशंस देखे होंगे, तो आप एक बार में इसका आंसर बता सकते हैं। एंड यू हैव 3 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन। एंड द करेक्ट आंसर इज इजराइल। यस, दिस इज वन लाइनर, डायरेक्ट आंसर पता होना चाहिए। इजराइल के साथ अभी इंडिया ने साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया, पहले भी किए हैं, 2018 में किए हैं, 2019 में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव साइबर वीक अटेंड करने गए थे इजराइल में, वहाँ पे साइबर वीक होता है, तो वो गए थे 2019 में, एंड 2018 में भी साइन कर चुके हैं ये चीज़, एंड फिर से अभी 2020 में एक और इंडिया ने साइन किया है इजराइल के साथ साइबर सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Who is the new chairman of HCL Technologies? And this is an important question, क्योंकि अब टेक्नोलॉजीज को कॉर्पोरेशन के साथ कंफ्यूज मत करना। And you have 3 seconds to answer the question. And the correct answer is रोशनी नादर। Yes, रोशनी नादर ने अपने फादर को रिप्लेस किया है। इनके फादर पहले चेयरमैन थे, जिनका नेम है शिव नादर। अब वो सिर्फ एमडी हैं HCL टेक्नोलॉजीज के, एंड चेयरमैन बन चुकी हैं रोशनी नादर। रोशनी नादर ऑलरेडी सीईओ है HCL कॉरपोरेशन की, ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रख लीजिएगा, ये सीईओ है HCL कॉरपोरेशन की एंड चेयरमैन है HCL टेक्नोलॉजीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया रैंक्स इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स लॉन्च हो गया है, उसमें इंडिया की क्या रैंक आई है? यू हैव 3 seconds टू आंसर द क्वेश्चन। एंड द करेक्ट आंसर इज थर्ड। यस, थर्ड इंडिया की रैंक आई है आफ्टर चाइना एंड यूएसए। एंड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स होता क्या है? दैट इज GMRI, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में ये चीज़ प्रेफर की जाती है कि कौन सी लोकेशन, विच लोकेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, फॉर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, यानी अदर कंट्रीज भी जहाँ पे इन्वेस्ट कर सके, जिस कंट्री में वहाँ पे का लेबर सस्ता हो, वहाँ पे ऑपरेशंस जो करें, ऑपरेशंस ईजी हो, रॉ मटेरियल ईजीली मिल जाए, जो उनकी कंडीशंस होती है मैन्युफैक्चरिंग की, वो इजीली सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 48 कंट्रीज़ का सर्वे किया गया है, उनमें जो इंडिया की रैंक आई है वो थर्ड है। बुरी नहीं है, बट अच्छी रैंक है आफ्टर चाइना एंड यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सहकार मित्र स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम, दैट इज SIP, स्कीम ऑन इंटर्नशिप प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ, किसका इनिशिएटिव है? एंड यू हैव 4 ऑप्शंस। And the correct answer is NCDC, that is National Cooperative Development Corporation, NCDC। ये NCDC का एक इनिशिएटिव है। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में क्या किया जाएगा? इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनको इंटर्नशिप दी जाएगी, और इंटर्नशिप होगी पेड इंटर्नशिप दी जाएगी, जिससे उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़, एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिटीज़, ये सारी क्वालिटीज़ इंक्रीज़ हो, इनको इन्हेंस किया जाएगा इस स्कीम में, ताकि यूथ एंड यंग इंडिया की ग्रोथ में हेल्प कर सके
विद पेड इंटर्नशिप, बिकॉज बहुत कम एरियाज होते हैं जहाँ पे पेड इंटर्नशिप मिलती है, तो ये एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। एंड इट इज़ बाय NCDC, दैट इज़ नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आप इससे कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये ऑप्शंस काफ़ी कंफ्यूज करता है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ये दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of these assault rifles of Israel Weapon Industries will be manufactured at PLR Systems Private Limited? And you have 3 seconds to answer this question. And the correct answer is Arad. Yes, Arad and एक और assault rifle है जिसका नाम है Camel। ये दो असॉल्ट राइफल हैं इसराइल वेपन इंडस्ट्री की। इसराइल ने ये मैन्युफैक्चरिंग दी है PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हो रही है, और ये एक प्राइवेट फर्म है, जो कि कह सकते हैं कि पहली प्राइवेट फर्म है, एक स्मॉल स्केल पे है। ये इंडियन आर्म को भी ये वेपन प्रोवाइड करती है, टैवर ये प्रोवाइड किया जाता है इस फर्म के द्वारा। एंड ये अच्छी बात है कि इस फर्म को इसराइल की तरफ से एंड अदर कंट्रीज़ की तरफ से ऑफर्स मिल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, जो इसराइल की वेपन इंडस्ट्री है दैट इज़ IWI, वो उसका कोलेब्रेशन है PLR के साथ, तो ये एक अच्छी बात है फॉर इंडिया एंड फॉर मेक इन इंडिया प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इंस्टीट्यूट इज एट रैंक फर्स्ट एज पर द नेचर इंडेक्स 220। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट मेंशन कर दिया है, तो आप लोगों को थोड़ा अंदाजा हो जाएगा, बट अगर इंस्टीट्यूट मेंशन ना हो तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि नेचर इंडेक्स क्या होता है। इट्स नॉट अबाउट समथिंग नेचर, ये इंडेक्स होता है, ये हाईलाइट करता है वो इंस्टीट्यूशनल कंट्रीज को जहाँ पे डोमिनेट की जाती है हाई क्वालिटी रिसर्च इन द नेचुरल साइंस बेस्ड ऑन रिसर्च पब्लिश्ड ऑन टॉप जर्नल्स। इट मीन्स जो इंस्टीट्यूट अच्छे इंस्टीट्यूट बड़ी बड़ी कंट्रीज के या किसी भी कंट्रीज के, उन इंस्टीट्यूट का योगदान रिसर्च में जिसका जितना ज़्यादा होगा टॉप रिसर्च में, एंड जिसके जितने ज़्यादा टॉप जर्नल्स में पेपर पब्लिश होंगे, उस इंस्टीट्यूट की रैंक उतनी अच्छी होगी। इट मीन्स कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सी कंट्री हाई क्वालिटी रिसर्च प्रोवाइड कर रही है, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, तो ये वो लिस्ट है। इसमें पहले नंबर पे कौन कंट्री है, कौन इंस्टीट्यूट आया है, किस कंट्री का आया है, एंड यू हैव 3 seconds टू आंसर। 1, 2 and 3, and the correct answer is चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस। और ये ऑब्वियसली चाइना की है, तो इसकी रैंक फर्स्ट आई है। हार्वर्ड सेकंड पोजीशन पे है, एंड थर्ड पे है मैक प्लैंक सोसाइटी ऑफ जर्मनी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। फर्स्ट भी याद रख लीजिए, ज़्यादा नहीं, सेकंड थर्ड को नहीं पूछा जाएगा। एक फर्स्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो है चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज, ये चाइना में है। अब ये जो है CSIR दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये इंडिया की है, इसकी रैंक क्या आई है ये चीज़ बताइए अगर आपको पता है तो चलिए मैं बता देता हूँ। CSIR की रैंक आई है 160, और इंडिया की टॉप 3 में CSIR फर्स्ट नंबर पे है। सबसे कम रैंक, सबसे अच्छी रैंक CSIR की ही है इंडिया में। इंडिया के इंस्टीट्यूट्स में 160 पे CSIR है। उसके बाद आता है 184 पे कौन सा, IISc दैट इज इन बेंगलोर, ये काफ़ी फेमस कॉलेज है फॉर रिसर्च पर्पस। इसकी रैंक है 184, CSIR की रैंक है 160, एंड एक इंस्टीट्यूट और है टॉप में 260 रैंक आई है, दैट इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन एंड रिसर्च, द TIFR, इसकी रैंक 260 आई है। तो इंडिया की जो टॉप 3 हैं वो एक तो CSIR हो गई फर्स्ट पे, सेकंड नंबर पे IISc बेंगलोर, एंड थर्ड पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। वर्ल्ड में टॉप पे आई है चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। As per United Nations recently released the multi-dimensional poverty index 220, ये चीज याद देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 220। इंडिया रिकॉर्डेड क्या, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इंडिया रिकॉर्डेड नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी बिटवीन द पीरियड ऑफ 2015 से 2019। तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है,
पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है वो इनक्लोज होता है, यानी उसमें चीज़ें जो जिस बेस पे ये एक डेटा बनता है, इंडेक्स बनता है, उसमें यह देखा जाता है कि कितने लोग, एक तो पुअर लोग हैं और उनकी हेल्थ कैसी है कंट्री में, हेल्थ देखी जाती है, उनका एजुकेशन देखा जाता है कि जो गरीब लोग हैं उनका एजुकेशन लेवल क्या है, उनका क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है ये देखा जाता है, उनका जहाँ पे वो काम करते हैं या जहाँ पे वो रहते हैं वो जगह कितनी हैजार्डस है ये चीज़ देखी जाती है, और वायलेंस का कितना थ्रेट है, उन्हें कितनी प्रॉब्लम है कि उनके ऊपर वायलेंस किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें कंसीडर की जाती हैं इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। तो इसमें 2015 से 2019 तक इंडिया ने क्या इंक्रीज करा है, डिक्रीज करा है, स्लाइटली इंक्रीज करा है, या इनमें से कोई नहीं? एंड यू हैव 3 सेकंड्स टू आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज डिक्रीज किया है। ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है, इंडिया ने इस चीज़ को डिक्रीज किया है एंड पोवर्टी लेवल में एज पर मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स, और ये 15 से 19 2015 से 19 के टाइम पे ये चीज़ डिक्रीज हुई है। अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात है, यूनाइटेड नेशन इस को रिलीज करता है, इस डेटा को रिलीज करता है, ठीक है, बट यूनाइटेड नेशन एक काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कौन सा सेगमेंट, उसका कौन सा पार्ट इस डेटा को रिलीज करता है? तो इस डेटा को रिलीज करता है डेटा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, दैट इज यूएन का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, ओके, DESA, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, यूएन का ये वाला जो डिपार्टमेंट है ये इसका डेटा रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What idea is behind celebration of नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे? आपको पता होना चाहिए ये कब था, अभी रिसेंटली ही गया है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, वो भी आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, बट पहले ये बताइए कि क्या आइडिया होता है सेलिब्रेशन का? एंड यू हैव थ्री ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज एवरी इंडिविजुअल हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। ये उनका आइडिया था, ये उनका विजन था, तो ये आइडिया है बिहाइंड द सेलिब्रेशन ऑफ नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि नेल्सन मंडेला डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एंड यू हैव 4 ऑप्शंस एंड द करेक्ट आंसर इज 18th जुलाई, 16th नहीं है, 18 जुलाई है। 18 जुलाई इज द करेक्ट आंसर, जो कि अभी कल ही था। तो ये चीज़ याद रखनी है, बिकॉज जो नेल्सन मंडेला जी थे वो, एक तो उनकी छवि ऐसी है, उनकी ख्याति इतनी प्राप्त है उन्हें, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, उनको 260 प्लस अवार्ड मिल चुके हैं, और ये काफ़ी बड़ा नंबर है 260 प्लस अवार्ड, ठीक है। एक तो वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं साउथ अफ्रीका के, कब से कब तक? 1994 से 99 तक, ठीक है, ये तो चलिए ठीक है, अश्वेत राष्ट्रपति थे वो वहाँ के, और 260 प्लस अवार्ड मिला है, ये भी एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। उनको नोबल पीस प्राइज भी मिला है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए ये इतनी फेमस पर्सनैलिटी है, इनको नोबल पीस प्राइज मिला है। और एक चीज़ और, उनको भारत रत्न भी दिया गया है, तो देखिए कितने फेमस हैं वो, तो इतने सारे तो उनके अवार्ड हैं, भारत ने भी उनको एक अवार्ड दे दिया, और हम सबको पता है कि भारत रत्न एक इंडिया के सिटीजन का सबसे बड़ा अवार्ड है, तो ये भी उनको प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम इज लॉन्च्ड फॉर विच स्टेट? ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, फर्स्ट ऑनलाइन की बात हो रही है, ना कि फर्स्ट प्रोग्राम की। एंड योर आंसर्स आर आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान। यू हैव 3 सेकंड टू आंसर द क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश, ठीक है। पहले निष्ठा क्या होता है, निष्ठा प्रोग्राम क्या है, अगर आप लोगों को नहीं पता है, दैट इज निष्ठा इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड
टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, राइटिंग थोड़ा इसमें मुझे अभी प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, जल्द ही ये चीज़ सुधर जाएगी। तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव ऑफ स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। बेसिकली ये टीचर्स का इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है। ऐसा नहीं है कि ये अभी तक लॉन्च नहीं था, ये 2019 में लॉन्च कर दिया गया था फेस टू फेस मोड में, कि वहाँ पे जाके ट्रेनीज पढ़ाते थे। एंड अब ये पहली बार, क्योंकि पेंडेमिक की वजह से इस प्रोग्राम को दोबारा से लॉन्च किया गया है, और ये ऑनलाइन लॉन्च किया गया है, जिसमें अब वर्चुअल क्लासेस होंगी, वर्चुअल टीचिंग्स दी जाएंगी। तो पहला स्टेट है जहाँ पे वो हुआ है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता दूं 27 लाख से ज़्यादा टीचर्स इसकी क्लासेस ले चुके हैं, उनको इस चीज़ का नॉलेज हो चुका है। अब इस चीज़ में करते क्या है, निष्ठा प्रोग्राम में टीचर्स को सिखाया जाता है कि कैसे करके स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग, सीआर, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, इसको इम्प्रूव किया जाए। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, ऑनलाइन हो गया है तो ये काफ़ी अच्छी बात है, और जल्द ही अदर स्टेट्स में भी ये ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। होपफुली आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा हो, ये एमसीक्यूज पसंद आया हो। एंड आप प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, इससे हमें पता चलता रहता है कि हमारे क्वेश्चन का लेवल क्या है। अगर आप इजीली आंसर कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छे एंड काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप प्लीज़, अगर आपने ये पूरी वीडियो देखी है एंड आपने आंसर्स चूज़ किए हैं, तो आप अपने करेक्ट आंसर्स, चाहे जो भी हो, गलत हो सही हो, वो चूज़ कर लीजिए। 15 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं, अगर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।